Hello students, today I am going to continue this chapter, that is rules of debit and credit. In this chapter we already discussed and we already learned about classification of accounts. In classification of accounts there are two parts, personal accounts and impersonal accounts. Impersonal accounts further classified as real account, nominal account. Okay, so in our previous class we already discussed about personal account. We know there are three further classification of personal account. One is natural personal account, another is artificial personal account, and last one is representative personal account. First one, natural personal account, personal account means Mohan, Ramesh, you, me, everything, whatever is there, the name is the natural personal account and the person should be natural. Next one is artificial person, that is SBI, Reliance, Big Bazaar, SRCC College, etc. Third one is representative personal, who represent that personal account. Okay, that representative personal account example is wages outstanding, salary outstanding, accrued income, etc. Okay, so you should remember that thing, that personal account should be classified as three separate personal account. Okay, separate personal account. It should be personal account. It should be personal account. Okay. Now in today's class, I am discussing about real account. Okay, show you right, real account. We know that real account are separated in two important classification. It is tangible real account and intangible real account. Intangible real account. Okay, now tangible real account means what? Means land and building, machinery, furniture, plant, etc. Okay, intangible real account means goodwill, patents, trademark, and copyrights, etc. Now, what is the meaning of that word? Tangible real account. The account recording transactions related to tangible things which can be touched, purchased, and sold is called a tangible things. Such tangible things, the example of such tangible things as goods, cash, building, machinery, land and building, etc. That tangible thing is known as tangible real accounts. Means जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं, सोल्ड भी कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं हम लोग, उसको टेंजिबल रियल अकाउंट बोलते हैं. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड? इंटेंजिबल रियल अकाउंट. The accounts recording transactions relating to intangible things such as goodwill, patent, copyright, trademark. Basically, that intangible things do not have physical shape. For example, goodwill, patent, copyright, ट्रेडमार्क, इसको हम लोग कभी भी नहीं देखा मगर इसका फीलिंग अभी भी होता है. जैसे कि तुम्हें अगर मैं ऐसे गिफ्ट के द्वारा मैं तुम्हें 30,000 अगर दूंगा तो ऑब्वियसली तुम्हारे दिमाग में अभी चल रहा है कि कौन सा मोबाइल तुम परचेस करोगे. यानी ये जो मोबाइल तुम परचेस करोगे ये अलग अलग होगा अलग अलग स्टूडेंट्स का. ये अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए जो अलग अलग मोबाइल फ़ोन का कंपनी है वो उसके लिए उस स्टूडेंट के लिए एक गुडविल का एक एग्जाम्पल है. ओके, गुडविल कभी भी दिखाई नहीं देता
गुडविल जस्ट फिल कर सकते हैं हम लोग। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये भी हम लोग देखते हैं अपने बुक के अंदर। बुक के अंदर हमेशा देखना कॉपीराइट का एक सिंबल रहता है, पेटेंट का भी रहता है। सो ये चीज़ याद रखना, बुक के अंदर अगर ऐसा एक सिंबल, आई थिंक फर्स्ट और सेकंड पेज में तुम लोगों को मिलेगा, कोई भी ऑथर के बारे में, कोई भी पब्लिशिंग कंपनी के बारे में, उस जगह में एक ये सी के अंदर ये ऐसा गोल दिखाई देगा। वो क्या है? वो है कॉपीराइट का एक सिंबल, ठीक है। तो याद रखना वो चीज़। तो रियल अकाउंट का एग्जांपल मैंने बोल दिया। रियल अकाउंट के अंदर टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इंटेंजिबल रियल अकाउंट हम लोग को दिखाई देता है, और इसके अंदर क्या क्या एग्जांपल है वो भी हम लोगों ने सीख लिया अभी। ओके, सो अभी हम लोग क्या देखेंगे? अभी देखेंगे हम लोग रियल अकाउंट का फॉर्मूला। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रियल अकाउंट का फॉर्मूला कैसा होगा? व्हाट कम्स इन, सॉरी इसको एक साथ लिख लेते हैं। व्हाट कम्स इन इज इक्वल टू डेबिट, व्हाट गोज आउट इज इक्वल टू क्रेडिट। ये फॉर्मूला तुम लोग सीख के रखो, अपने कॉपी में लिख के रखो और इसको हमेशा देखना। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। यानी अगर बिल्डिंग तुम्हारे घर में, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा बिजनेस है, सोच के तुमने बाहर से एक बिल्डिंग तुमने परचेस करके तुम्हारे बिजनेस में तुमने लेके आया, तो इसके लिए व्हाट कम्स इन दैट फर्नीचर कम्स इन। सोच के ये फर्नीचर तुमने खरीदा, फर्नीचर कम्स इन, तो इन दैट केस दैट फर्नीचर इज इक्वल टू डेबिट, बिकॉज रूल्स क्या है? व्हाट कम्स इन डेबिट, यानी फर्नीचर कम्स इन डेबिट। अगर तुम एक बिजनेसमैन हो और एक फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हो, उस समय तुम्हारा अगर तुम्हारी दुकान से अगर फर्नीचर जा रहा है, उस समय वो फर्नीचर क्या होगा? वो फर्नीचर क्रेडिट होगा। वाई? बिकॉज व्हाट गोज आउट क्रेडिट, दैट्स वाई दैट फर्नीचर इज इक्वल टू क्रेडिट। तो यू शुड रिमेंबर दैट थिंग्स इन ए एसेट वे और इन ए रियल अकाउंट वे। सो ये याद रखना, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अभी नॉमिनल अकाउंट को लेके। ओके, सो नॉमिनल अकाउंट का भी दो अलग अलग सेपरेशन है। वो है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और एक है इनकम एंड गेन्स। इसका एग्जाम्पल क्या है? रेंट पेड, सैलरी पेड, इंश्योरेंस पेड, एक्सेट्रा। ये एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का एग्जाम्पल है। ये कैसे होगा? देखो, अगर तुम्हारा बिजनेस में कुछ रेंट पे कर रहे हो, अगर तुम कोई भी एक जगह में रेंट लेके तुम बिजनेस कर रहे हो, तो ये रेंट तुम्हारे लिए एक्सपेंसेस हुआ। सैलरी भी, तुम्हारे स्टाफ को सैलरी दे रहे हो, ये भी तुम्हारे लिए एक्सपेंसेस है। इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हो, ये भी तुम्हारे लिए एक्सपेंसेस है। ये वन काइंड ऑफ एक्सपेंसेस है और वन काइंड ऑफ लॉस की तरह लग रहा है, मगर लॉस नहीं है, मगर लग रहा है, क्योंकि तुम्हारे पैसे से तो ये जा रहा है ना, तुम्हारे प्रॉफिट से तो ये जा रहा है। तो ये चीज़ याद रखना, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड इनकम एंड गेंस। इनकम एंड गेंस का एग्जांपल क्या हो सकता है? पूरा उल्टा केस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का, रेंट रिसीव्ड, अगर रिसीव हुआ है रेंट तो ऑब्वियसली तुम्हारा इनकम बढ़ गया ना। कमीशन रिसीव्ड, देन एक्सेट्रा। ओके, तो ये चीज़ याद रखना। अभी इस नॉमिनल अकाउंट का जो रूल्स है, वो रूल्स क्या होगा? देखो, नॉमिनल अकाउंट का रूल्स है, रूल्स इज all expenses and losses are debit, इसका हम शॉर्ट फॉर्म में DR लिखते हैं। all income
एंड गेन्स ऑब्लिक क्रेडिट, ये क्रेडिट होगा जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CR लिखते हैं। तो ये रूल्स हम लोग को याद रखना पड़ेगा। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है ये हम लोग जानते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल्स है रिसीवर, यानी जो भी रिसीव कर रहे हैं बिजनेस में वो है डेबिट, एंड who give anything is called a credit, इसको हम लोग CR भी लिख सकते हैं। ओके, सो ये याद रखना। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे पहले ये जो था ये ट्रेडिशनल अप्रोच था। अभी मॉडर्न अप्रोच भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये मॉडर्न अप्रोच बेसिकली क्या है? ये मॉडर्न अप्रोच का और एक नाम है अमेरिकन अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच, ठीक है। अमेरिकन अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। According to the American approach of accounting, all accounts are divided into 5 categories for the purpose of recording the transactions. That 5 categories are asset account, number 2 is liabilities account, three is capital account, or owner equity account, number 4 is expenses oblique losses account, number 5 is income oblique gains account, okay. First of all, you have to remember that accounts, that asset account, liabilities account, capital or owner's equity account, expenses oblique losses account, income oblique gains account. सो अभी इस ये जो अकाउंट हम लोग देख रहे हैं अभी, इस अकाउंट का भी रूल्स है, ट्रीटमेंट है, जो अभी हम लोग देखेंगे। सो पहले लिख लेते हैं ट्रांजैक्शन इस जगह में, ट्रांजैक्शंस। इसके बाद इसका ट्रीटमेंट लिखेंगे, ट्रीटमेंट हियर, ओके। ट्रांजैक्शन इज एसेट। नाउ इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इसका ट्रीटमेंट होगा डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर। ये डेबिट एंड क्रेडिट कॉमन रहेगा, इसको कॉमन रखते देते हैं। ट्रांजैक्शन भी कॉमन है, ये भी ट्रीटमेंट भी कॉमन है, ओके। डेबिट इंक्रीज, क्रेडिट डिक्रीज। यानी डेबिट क्या है? इंक्रीज है, क्रेडिट है डिक्रीज। यानी एसेट अगर इंक्रीज होगा उस समय हम लोग इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अगर एसेट डिक्रीज होगा इसको हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटीज़ को हम लोग अभी लिखेंगे, ओके। लायबिलिटीज़ को, लायबिलिटीज़ एसेट का उल्टा केस, ये याद रखना। डेबिट होगा कब? जब डिक्रीज होगा। इंक्रीज होगा कब? क्रेडिट होगा कब? जब इंक्रीज होगा।
ओके, ये लाइबिलिटीज चला गया। अभी कैपिटल के बारे, कैपिटल भी सेम है, लाइबिलिटीज का तरह है, क्योंकि हम लोग अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग अगर देख के आए हैं कि लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट, दैट्स वाई दैट कैपिटल, ऑलवेज रिमेंबर लाइबिलिटीज का रूल्स कैपिटल का रूल सेम रहेगा, यानी डिक्रीज इंक्रीज, जब कैपिटल डिक्रीज होगा तब डेबिट होगा, जब इंक्रीज होगा तब क्रेडिट होगा। ओके, नेक्स्ट अभी देखेंगे कैपिटल ऑलरेडी चला गया। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस, एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस। इसका रूल्स तो वो गोल्डन रूल में हम लोग सीख के आए हैं कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। मगर जब भी कोई भी एक्सपेंसेस लॉसेस को अमेरिकन अप्रोच में अगर बात करेंगे, उस समय सेपरेटली एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के लेके ही बात करेंगे। उस समय कोई भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जब इंक्रीज होगा तब डेबिट होगा, जब डिक्रीज होगा तब क्रेडिट होगा। यानी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अगर अलग से हम लोग सोचेंगे, जब भी एक्सपेंसेस कभी भी पिछले साल से इस साल बढ़ गया, उस समय डेबिट करेंगे जो बढ़ गया अमाउंट वो उसको। ओके, नेक्स्ट है इनकम एंड गेन्स। उसका रूल्स क्या है? उसका रूल्स है उल्टा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का उल्टा। ओके, ये याद रखना। इस रूल्स को, यानी अमेरिकन अप्रोच का ये जो रूल है उसको कॉपी में उठाओ और हर दिन एटलीस्ट 10-15 दिन रेगुलर इसको देखते रहना, तो तुम लोगों को जर्नल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इसको याद नहीं रखोगे तो जर्नल में एक ना एक जर्नल में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है, सो ये चीज़ याद रखना। नाउ we are solving one question. Here's the question. Classify the following under personal, real and nominal account. इसमें देखो कितना बहुत सारा अकाउंट्स है, इसमें से हम लोगों को पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स में तब्दील करना है। ठीक है, सो ये कैसे करेंगे हम लोग? सिंपली पर्सनल अकाउंट को पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ओके, ये मैं कौन से सिस्टम में कर रहा हूँ देखो। क्लासिफाई द फॉलोइंग अंडर पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। इसमें कोई अप्रोच नहीं बोला है। ठीक है, सो हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैसे? पहले क्या है? कैपिटल। कैपिटल ऑब्वियसली किसी के नाम से होता है, इसलिए हम लोग इसको इस जगह में लिखेंगे पर्सनल अकाउंट। ये देखो, ये फुल्ली में कौन सी अप्रोच में कर रहा हूँ? ये हम लोगों का ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन जो है, सो मैंने क्या लिखा? कैपिटल रियल पर्सनल अकाउंट के अंदर मैंने लिखा। इसके बाद मशीनरी, तो ऑब्वियसली मशीनरी हम लोग कहाँ पे लिखेंगे? रियल अकाउंट में। इसके बाद
परचेज ऑब्वियसली हम लोग नॉमिनल अकाउंट में लिखेंगे। ओके, इसके बाद डिस्काउंट रिसिप्ट, ये एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इनकम एंड गेन्स में इनकम है, तो इसके लिए इसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट में लिखेंगे। इसके बाद रेंट पेड, रेंट पेड भी नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। इसके बाद बैंक अकाउंट, ऑब्वियसली नाम से होता है। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, वो भी नाम से होता है। ओके, इसके बाद सेल, सेल ऑब्वियसली हम लोग नॉमिनल अकाउंट में लिखेंगे। डेटर्स, क्रेडिटर्स, फर्नीचर, कैश, ये एसेट जब होगा ये रियल अकाउंट का पार्ट हो सकता है, ये याद रखना। इसके बाद बैड डेप्ट, इसके बाद बैड डेप्ट रिकवर्ड, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी अकाउंट, किसी के नाम के लिए सैलरी आता है, इसलिए प्रीपेड सैलरी किसी के नाम से होगा। सैलरी पेड ये अलग बात है, मगर प्रीपेड सैलरी तो ऑब्वियसली प्रीपेड यानी समय से पहले का कुछ हम लोग पे करेंगे। अगर कोई भी सर्विस को हम लोग लेने से पहले अगर कोई भी पेमेंट होता है उसको प्रीपेड हम लोग बोलते हैं, और सर्विस लेने के बाद अगर पेमेंट होता है उसको पोस्ट पेड बोलते हैं। जो BSNL पोस्ट पेड है और रिलायंस जियो का प्रीपेड कनेक्शन भी है। सो ये हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, ये पिछले जो क्लास हुआ था उसमें। नेक्स्ट वन इज गुडविल। इसके बाद एडवर्टाइजमेंट, कमीशन एक्रूड, प्रीपेड कमीशन एक्रूड किसी के नाम से होता है, और कमीशन पेड एंड कमीशन रिसीव होता तो ये नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होता है। लैंड एंड बिल्डिंग, इंटरेस्ट रिसिप्ट, ये तो डायरेक्टली आ जाएगा, सॉरी। ड्राइंग्स किसके नाम से होता है, ये हो गया इसका आंसर। ओके, ऐसे ही तुम लोग घर में कुछ प्रैक्टिस कर लेना। सो आज के लिए इतना ही, बाय। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानने
जर्नल को लेके बात करेंगे। ओके।